Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा जो कि चैप्टर 10th है और इसका लास्ट पोर्शन हम कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट कर चुके, क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था हमने, उसका बेसिक कर चुके हैं, अभी उसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू है। करते हैं एक्सरसाइज 10.4। इसके दो क्वेश्चन हम कर चुके थे, थर्ड क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a unit vector a makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with j and acute angle theta with k, then find theta and hence the component of vector a. If a is a unit vector, given that a is a unit vector, let us suppose, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, let us suppose, let vector a is equals to xi plus yj plus zk. Let this is the vector a, as it is given that it is a unit vector. Now, as vector a is unit vector, so its magnitude will be equals to 1. given है a unit vector है तो magnitude 1 होगा. Magnitude means x square plus y square plus z square under the root, it will be equals to 1, or we can write x square plus y square plus z square is equals to 1. This is the equation number 1. Now the angle of the vector with I component is pi by 3. Let theta is angle between I component and the vector, means cos of pi by 3. Now first condition, first I component के साथ इसका एंगल कितना है, pi by 3 given है, means cos of pi by 3 will be equals to vector a dot I divided by magnitude of a into magnitude of I. यही होगा. दो वेक्टर है a और b, उनके बीच एंगल निकालने के लिए फार्मूला a डॉट b अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड. अब a वेक्टर और I कंपोनेंट के बीच एंगल दिया है, एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड I इज पाई बाय 3, एंगल बिटवीन a एंड j इज पाई बाय 4, a एंड k इज थीटा, देन फाइंड थीटा. यही है क्वेश्चन. तो a और I के बीच पाई बाय 3 है तो cos ऑफ थीटा मींस पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू a डॉट I अपॉन a मैग्नीट्यूड I magnitude. Cos of pi by 3, we know that cos 60 is 1 by 2, it is equals to xi plus yj plus zk dot I divided by magnitude of a, given that a is unit vector, its magnitude is 1, and I jk तीनों unit vector होते हैं, their magnitude is also 1. So 1 upon 2 is equals to, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, i को i से करेंगे तो 1 होगा, मींस i डॉट i is 1, तो 1x, i डॉट j 0, i डॉट k 0, it is x. So this is the value of x. Also angle between the vector a and j component, वेक्टर a और j कंपोनेंट के बीच एंगल कितना दे रखा है, pi by 4, तो वहां भी हम यही चीज अप्लाई करते हैं. cos of pi by 4 is equals to vector a dot j component divided by magnitude of a and j component magnitude. Cos pi by 4 145 पे cos की वैल्यू 1 by root 2 is equals to a वेक्टर की j से करेंगे, जैसे यहाँ i से करी तो x बता था, j से करेंगे तो y बचेगा और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड 1 होगा. So value of y is also obtained. Put both of these values in equation number 1. Put x and y in equation number 1. Then what do we get? We got x square means 1 by 2 square plus y square 1 by root 2 square plus z square is equals to 1. 1 by 4 plus 1 by 2 plus z square is equals to 1, or we got z square equal to 1 minus 1 by 4 और 1 by 2 कितना होगा, it is 1 by 4 and 1 by 2. Taking the LCM, 4 is the LCM, so 4 minus 1 minus 2, it is 1 by 4. 4 is LCM, so 4 minus 1 minus 2, z square is 1 by 4. Then what is z? It is plus or minus 1 by 2. It can be plus 1 by 2 or minus 1 by 2. So what are the components? Components are
x is 1 by 2, y is 1 by root 2 and z is 1 by 2, or x is 1 by 2, y is 1 by root 2, z is minus 1 by 2. These may be the components. ये उसके components होंगे, x component, y component, z component, I component, j component, k component. या तो प्लस 1 by 2 लेंगे या माइनस 1 by 2. Now find the angle theta. एंगल थीटा क्या है? z के साथ जो एंगल है, यानी कि k कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा है. Now angle between the vector a and k component is given as theta. So cos of theta will be equals to vector a dot k divided by a magnitude k magnitude. This will be, so cos of theta is equals to a dot k करेंगे k कंपोनेंट के साथ a वेक्टर की मल्टीप्लाई, ये रहा, इसकी k कंपोनेंट से करें, k को k से z बचेगा, बाकी दोनों जीरो होंगे, so it is z डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a is 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ k is also 1 क्योंकि i j k तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं. So we find z is equals to cos of theta, means cos theta is equals to plus or minus 1 by 2. We can say theta is equals to cos की वैल्यू प्लस 1 by 2, 1 by 2 का होती है पाई by 3 60 पे, और अगर माइनस 1 by 2 है तो पाई माइनस पाई by 3 होगा, यानी कि 180 minus 60. So we got theta is equals to pi by 3 or 2 pi by 3. This is the value of theta. थीटा जो एंगल है वो पाई by 3 या 2 pi by 3 हो सकता है, और कंपोनेंट उसके तीनों ये हो जाएंगे. So this is the question number 3, exercise 10.4. इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्योंकि a एक यूनिट वेक्टर गिवन है, so its magnitude will be equals to 1, means x square plus y square plus z square will be equals to 1. उसके बाद सिर्फ आपको cos of the angle between two vectors dot product का फॉर्मूला लगा देना है. दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना हो, cos थीटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो फॉर्मूला यूज कर देंगे बस, that's it. Question number 4, and that is show that vector a minus vector b cross vector a plus vector b equals to 2 times of a cross b. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. लेफ्ट हैंड साइड इज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, इट इज a क्रॉस a, देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, then minus vector b cross vector a and minus vector b cross vector b. Cross product करेंगे. In the cross product we know if the two vectors are same or parallel, their cross product is 0. अगर कोई भी दो वेक्टर सेम है या पैरेलल हैं, कोलिनियर है या पैरेलल है, सेम वेक्टर है, then cross product is 0. We know that the cross product is 0. So in this case this cross product will be equals to 0, b cross b will also be equals to 0. ये दोनों चीजें 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, a cross b. क्रॉस प्रोडक्ट में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है, अगर हम इसका साइन चेंज करते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, b cross a becomes a cross b and this is 0. So we got a cross b and a cross b twice of vector a cross b which is equals to the right hand side. So it is so simple question, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. Question number 5, that is find the value of lambda and mu if the cross product of these two vector is equals to a 0 vector, null vector. दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है, तो लैम्डा और a फाइंड करना है. We are starting the solution. Taking the left hand side, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं by the method of determinant. So write I, then j and then k. Write the component of first vector ये इसके component, that is 2 6 27. Then the component of second vector, that is 1 lambda and mu. It is equals to 0 vector. Simplify करते हैं इसको. So we got I
इनटू आई के मल्टीप्लाई में क्या होगा, रो कॉलम को हटाएंगे तो इट इज 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, देन द कंपोनेंट ऑफ j माइनस j के मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये रो कॉलम हटाएंगे तो इट इज 2 म्यू एंड माइनस दिस इज 27, देन प्लस k कंपोनेंट में क्या होंगे, इट इज 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6, it is equals to 0 vector means 0i plus 0j and plus 0k, 0 vector means this. Now compare only, सिर्फ कंपेयर करो, i j k की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयरिंग j कंपोनेंट को मैं कंपेयर करता हूं, वैसे इसको भी कर सकते हैं बट इसमें दोनों वेरिएबल है, सोल्व करना थोड़ा सा टफ रहेगा, हम यहां से सोल्व करते हैं। j कंपोनेंट क्या है, माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27, it is equals to j component 0, k component कितना है 2 lambda minus 6, a is equals to k component which is 0, and चेक करने के लिए आप i component को भी कर सकते हो, 6 mu minus 27 lambda is equals to 0, फाइंड यहां से करेंगे, चेक करके देख लेंगे थर्ड को सेटिस्फाई करता है यार, यहां से हम mu की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, it is 27 upon 2, यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इट इज 3, लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू वहां पुट अप करके चेक करके देख लेते हैं, इफ आई 6 into म्यू व्हिच इज 27 upon 2 minus 27 into lambda which is 3 equals to 0, 2 से ये कैंसिल, 3 into 27 ये हुआ means 81, और यहां भी 3 into 27 81 which is equals to 0, so true, hence it is true, so value of mu is 27 upon 2 and value of lambda is 3, ये आ जाएगा। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ mu and lambda if the cross product of these two vectors is equals to 0 vector, then find mu and lambda, so these are the value of mu and lambda। so next question is question number 6, if a dot b equal to 0 and a cross b equals to 0, then what can you conclude about the vectors a and b, a और b के बारे में हम क्या बता सकते हैं, चलो देखते हैं क्या पता चलेगा। a dot b equals to 0, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स के अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इट मींस either the first vector equals to 0 or the second vector equals to 0 or they are perpendicular to each other, a is perpendicular to b, ये मतलब होगा दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है, इट मींस या तो फर्स्ट वेक्टर 0 होगा या सेकंड वेक्टर 0 होगा या फिर वो परपेंडिकुलर होंगे, और दूसरी कंडीशन ये क्या कहता है, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, इट मींस या तो फर्स्ट वेक्टर 0 होगा या तो सेकंड वेक्टर 0 होगा या फिर वो दोनों पैरेलल होंगे, वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल यूज होता है साइन थीटा, और साइन थीटा 0 कहां पे होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री का मतलब लाइंस आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट में 0 कब होता है, कौन सा एंगल यूज होता है, कोस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगी, जब कोस थीटा 0 होगा, कोस की वैल्यू 0 का होती है 90 पे, इट मींस डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब वो पैरेलल हो सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक 0 होगा। अब इन दोनों चीजों को अगर हम ध्यान से देखते हैं, फ्रॉम बोथ दीस कंडीशंस व्हाट कैन वी से, या तो वेक्टर a0 या वेक्टर b0 है, पैरेलल और परपेंडिकुलर ये दोनों चीजें तो साथ में हो ही नहीं सकती, नो टू वेक्टर्स कैन बी पैरेलल as well as perpendicular to each other, हो सकता है एक चीज हो, दो वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बट दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी, दिस इज नॉट पॉसिबल, मींस दे आर ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों में से एक हो सकती है, बट इन्होंने लिखा है दिस कंडीशन होल्ड्स एंड दिस आल्सो होल्ड्स, दोनों कंडीशन होल्ड करती है, मतलब या तो दोनों पैरेलल या दोनों परपेंडिकुलर, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, मींस ये कंडीशन तो हो गई फेल, वेक्टर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशन होगी फेल,
So what are we left with the condition? We are left with A is equals to 0 और B is equals to 0. ये बचेगा इसका आंसर। तो दोनों में से कोई ना कोई एक वेक्टर 0 जरूर है, 0 वेक्टर है। अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, दोनों चीजें अगर 0 आती हैं, इट मींस दोनों में से कम एक वेक्टर 0 जरूर होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो पॉसिबल है ही। जब दोनों चीजें एक साथ है तो ये चीज नहीं होगी। पैरेलल परपेंडिकुलर तो बचेगा ही, क्योंकि अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता और परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं हो सकता। इट इज वो कंडीशन खत्म, तो सिर्फ यही चीज बचेगी। सो दीस वेक्टर्स आर either वेक्टर a equal to 0 और b equal to 0, दोनों में से कोई ना कोई एक वेक्टर 0 जरूर होगा। So next question is question number 7. If vector a, b and c are given, then show that a cross b plus c equal to a cross b plus a cross c, means cross product of two vector is distributive over addition. ठीक है, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन पे क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, ये हमें शो करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। इन द लेफ्ट हैंड साइड a क्रॉस b प्लस c निकालना है ना हमें। a क्रॉस b प्लस c, व्हाट इज b प्लस c? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। a क्रॉस b प्लस c इज क्रॉस प्रोडक्ट है, हम लेंगे क्या? डिटरमिनेंट मेथड i j and k. Write the component of vector a which is a1 a2 a3। स्पेस थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। I, J and K. This is A1, A2 and A3. Then the component of vector B plus C. B plus C मतलब ये I को I से ऐड करें तो B1 plus C1 होगा, J को J से ऐड करें तो B2 plus C2 होगा और K को K से ऐड करें तो B3 plus C3 होगा। Now solve it. So I dot I के मल्टीप्लाई में क्या होगा? ये मल्टीप्लाई यानी कि a2b3 प्लस a2b3 प्लस a2c3, देन कंपोनेंट ऑफ ये हो गया माइनस ये बनेगा, इसके माइनस में जाएगा क्या? b2a3 माइनस b2a3 माइनस c2a3 बन गया। नेक्स्ट j के मल्टीप्लाई में क्या होगा? माइनस ऑफ j के मल्टीप्लाई में ये क्रॉस मल्टीप्लाई a1b3 प्लस a1c3, देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस में ये तो b1a3 c1a3 माइनस b1a3 और माइनस c1a3, देन द कंपोनेंट ऑफ k कंपोनेंट में क्या होंगे? k कंपोनेंट इनको हटाएंगे ये मल्टीप्लाई a1b2 प्लस a1c2 माइनस ये हो जाएगा माइनस b1a2 माइनस c1a2। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल फाइंड द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड? दैट इज a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ओके, I J and K। पहले a क्रॉस b लेते हैं। a क्रॉस b में पहले a के कंपोनेंट दैट इज a1 a2 a3 और फिर b के कंपोनेंट b1 b2 b3 प्लस a क्रॉस c कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास I J and K। पहले हम लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a क्रॉस c है तो पहले a के कंपोनेंट दैट इज a1 a2 a3, देन c है तो कंपोनेंट ऑफ c दैट इज c1 c2 c3। अब इनको हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करेंगे और चेक करेंगे उसके इक्वल है या नहीं। नाउ सॉल्व इट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में? i के मल्टीप्लाई में क्या बनेगा? i के मल्टीप्लाई में होगा a2b3 माइनस b2a3 माइनस j के मल्टीप्लाई में क्या बनेगा? j के मल्टीप्लाई में होगा a1b3 माइनस b1a3 माइनस b1a3 प्लस k के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? k कंपोनेंट होगा इसका a1b2 माइनस b1a2 माइनस b1a2,
उसके बाद अगला प्लस, अब इसमें लेते हैं आई कंपोनेंट, क्या होगा आई कंपोनेंट, फिर से वही इसको टाइप हो A2C3 माइनस C2A3, A2C3 माइनस C2A3, देन माइनस J कंपोनेंट, J कंपोनेंट क्या होगा इसमें A1C3 माइनस C1A3, A1C3 माइनस C1A3, देन K कंपोनेंट, K component is ये हटाए क्या A1C2 minus C1A2, A1C2 minus C1A2, just add them, I component को I से ऐड करते हैं, I कॉमन आउट, क्या बच गया B2 A2B3, क्या आ गया हमारे पास A2B3, और यहां से A2C3 माइनस B2A3 और माइनस C2A3, फिर J कंपोनेंट माइनस, दोनों में था ना माइनस, यहां था माइनस, यहां था माइनस, हमने कॉमन रख लिया, J कंपोनेंट A1B3, पहले प्लस प्लस वाले लिखते हैं A1B3 और यहां से A1C3 माइनस B1A3 हो रहा और C1A3 ये रहा, उसके बाद प्लस K कंपोनेंट ये रहा, A1B2 प्लस का है, A1C2 यहां से ले लिया प्लस, और फिर माइनस B1A2 और यहां से C1A2, we can check, compare it with this I component A2B3 plus A2C3 minus B2A3 minus C2A3 सेम है, इसी तरह J कंपोनेंट वो भी सेम और K कंपोनेंट भी सेम, so left hand side is equals to right hand side, hence it is shown, यही हमने शो करा था, so this is the question number 7, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। So question number 8 is if vector A equal to 0 or vector B equal to 0, then A cross B is always 0, A या B में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो तो A cross B हमेशा 0 होता है, is the converse also true, क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा, हमने शो करना है, यानी A cross B 0 हो तो क्या A और B में से कोई एक 0 होगा, it is not compulsory, it can be but it is not compulsory, हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा, कंपल्सरी नहीं है, it need not compulsory that A equal to 0 or B equal to 0, or we can say need not compulsory that A cross B 0 implies that A 0 or B 0, A cross B 0 हो तो A या B में से कोई एक 0 होगा, ये इंप्लाई करे, कोई कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, अब इन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होती है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 के लिए तीन चीजें बताई थी, या तो A 0 होगा, या तो B 0 होगा, या फिर दे कैन बी पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, तो जरूरी नहीं है दोनों में से कोई 0 हो, पैरेलल भी हो सकते हैं, या हम लिख सकते हैं दे कैन बी पैरेलल, दे कैन बी पैरेलल वेक्टर्स, वो वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, let us suppose vector A is I plus 2j minus k and the vector B is multiple, its multiple 2i plus 4j minus 2k, इसका मल्टीपल ले लो। Now you can find here A is not equal to 0 vector, not a 0 vector, B is also not a 0 vector, दोनों में से कोई भी 0 वेक्टर नहीं है, ठीक है, but you can see their cross product will be 0, I j k, A के I कंपोनेंट क्या है 1, this is 2, this is -1, then B में 2 4 -2, you can use the determinant also, इसमें आप डिटरमिनेंट का भी यूज कर सकते हो बिना सॉल्व किए, कैसे, डिटरमिनेंट में क्या था, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन कर दिया, 1 2 -1 बच गया, डिटरमिनेंट में दो रो एक जैसी, इट इज इक्वल्स टू 0, आ गया 0, तो वेक्टर A भी 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है, दोनों ही 0 नहीं है, बट फिर भी उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गई, हमने यही शो करना था कि अगर A 0 और B 0 हो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी, कंपल्सरी है, बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो क्या कंपल्सरी A B 0 होंगे, इट इज नॉट कंपल्सरी, हमने देख लिया एग्जांपल, A 0 नहीं है B 0 नहीं है, बट क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने पर A या B 0 होंगे, कोई कंपल्सरी नहीं है,
It has been shown with the example. So this is the question number 8. Question number 9, that is find the area of the triangle formed by these vertices. इन vertex की help से बने triangle का area find करना है. तो triangle का area find करने के लिए हमें वेक्टर चाहिए कोई भी दो. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट होता है ना, वहीं से हम करेंगे. वेक्टर्स की फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 a क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये होता है. या a को हम ab और ac ऐसे ले सकते हैं. a वेक्टर इज ab, b वेक्टर इज ac, दोनों एडजेसेंट वेक्टर. एक ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है. दिस इज एरिया कैन बी टेकन एज बाय टेकिंग दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर. आप ये मान लिया a b और c है, तो AB वेक्टर ले लिया और AC वेक्टर ले लिया. सो फाइंड AB वेक्टर. x2 minus x1, 2 minus 1 is 1i, y2 minus 1, 3 minus 1 is 2j, and z2 minus z5 minus 2 is 3k. This is AB vector. Then find AC vector. Terminal minus initial. 1 minus 1 it is 0i, 5 minus 1 it is 4j, 5 minus 2 is 3k. We got both the vectors A and B. Then what is the area of triangle? 1/2 AB cross AC का magnitude. So first of all find AB cross AC means vector A cross vector B. I, J and K. This is 1, 2, 3, 0, 4, 3. क्या बन जाएगा? We can calculate it. I के मल्टीप्लाई में क्या होगा? This is 6 minus 12 minus 6 minus j into क्या होगा? 3 minus 0 3 and k into क्या होगा अपने पास? 4 minus 0 it is 4. So area is 1/2 magnitude. Magnitude क्या होगा इसका? minus 6 का स्क्वायर 36, यही होगा ना. इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 36. This is 9 and this is 16. बस रूट कर दो. दिस इज द एरिया ऑफ